Now, if I talk about the fifth one, in the fifth one, what you have to do? A metal is there, plus oxygen is there, giving metal oxide. So if metal is 0.5 gram, equivalent weight क्या ले लिया मैंने? E ले लिया. Equivalent mass is E. Metal oxide is 0.79 gram. It should be what? E plus 8. So 0.5 upon E should be equal to 0.79 upon E plus 8. ये किया होगा आपने? हेलो, ये किया ना? सर मैंने पहले मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला हाँ, एंड देन 0.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 0.5 मेटल देता है, तो 8 ग्राम कैसे देगा? 0.5 अपॉन 0.9 इंटू 8. ठीक है वो भी, लेकिन उससे बेटर देखिए, मेटल ऑक्साइड इज 0.79 ग्राम, मेटल इज 0.5 ग्राम. हाउ मच ऑक्सीजन डिड यू यूज? 29 gram. You can also do this 29 upon it, because what is the oxygen equivalent mass of oxygen generally? 8. 8 by definition. So this is the way to solve. कौन सा बेटर है? ये इक्वेशन बेटर है या ये वाला बेटर है? ऑक्सीजन वाला. ऑक्सीजन वाला बेटर है. So you will definitely get the answer. So E is equal to 8 into 0.5 upon 0.29. 13.79. Clear? Yes, sir. Now sixth one, if I discuss 0.1 gram of metal. Now here we will learn something. Some acid is there. Hydrogen gas is liberator. 0.1 gram. 0.1 gram upon क्या हो जाएगा? E. This is the number of equivalents of metal reacted. What is the volume of H2? 34.2 ml. Now I will tell you one thing. If 1.008 gram is equivalent mass of hydrogen, so this volume can be termed as equivalent volume. ठीक है? So can I write number of equivalents of gas as a formula? What kind of formula we can write? Number of equivalents of a gas should be equal to what? Volume of gas at STP upon equivalent volume of same gas at STP. Number of equivalent of hydrogen gas should be volume of hydrogen gas at STP. And what is equivalent volume of gas at STP? Equivalent volume of hydrogen gas at STP. So what is that? 11200. In general, it depends on the volume you can take. If it is liters, it should be 7.2. You can write it here. तो ये भी एक फंडामेंटल डेफिनेटली ये अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया. जनरली कोई फॉर्मूला है ही नहीं बेटा, तो हमने फ्रेम कर लिया फॉर्मूला. कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा कुछ. वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम इन लीटर्स 1 वॉल्यूम इन ml of hydrogen gas at STP upon 11200. You can apply. बस तो इसका इक्विवेलेंस क्या होगा?
34.2 अपॉन, दोनों क्या कर लेंगे इक्वेट, क्या सॉल्व, एनी डाउट? No, sir. Otherwise you can apply the definition also, है ना? Can definition apply? 34.2 liter is given by 0.1 gram. 1 ml is given by 0.1 upon 34.2. 11,200 will be given by 0.1 upon 34.2 into this. You can apply this also, you get the same answer. This what we did by definition. Definition हमने निकाल लिया इसको. 7. The sulfate of an element contains 42.2% element. Find equivalent weight of metal. फिर से वही है ना? मेटल सल्फेट, मान लो मेटल ही है, जनरली मेटल ही रहेगा. मेटल सल्फेट, व्हाट इज दिस? 42.2. व्हाट इज दिस? बोलिए. 100. तो 42.2 अपॉन E should be equal to 100 अपॉन E प्लस 48. हो गया आंसर. सब क्वेश्चन सेम ही था. 8th इज अ गुड क्वेश्चन. अब गुड तो नहीं है, कुछ सिमिलर फॉर्मेट में ही है. मेटल ऑक्साइड, इन सब में एक खास बात है कि मेटल इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स अमाउंट. जो मेटल लेफ्ट हैंड है वही राइट हैंड साइड में मेटल एग्जिस्ट करता है. तो आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मेटल क्लोराइड में. ये 3 ग्राम और ये 5 ग्राम्स. 3 अपॉन क्या करिएगा? E plus 8. और 5 अपॉन क्या करिएगा? E plus 35.1. क्वेश्चन सॉल्व. दिस इज आल्सो सॉल्व. डन? यस सर. Yes, sir. अब आंसर तो निकालने की जरूरत नहीं है. मैं आंसर तो नहीं निकालू ना, निकाल लेंगे ना आंसर. हाँ, यस sir. ओके. सर इसमें वो रिडॉक्स रिएक्शन से क्या आने वाला है? अरे रिडॉक्स नहीं आएगा सर मतलब मोल कांसेप्ट से आज के लेक्चर तक आपने जो पढ़ा है वही आएगा ना? नहीं, ये सब भी नहीं आएगा. मोल कॉन्सेप्ट आएगा सर, इक्विवेलेंट नहीं आएगा. नहीं आना चाहिए, है ना? सर मतलब वो मोलारिटी तक. हाँ, स्टोइचियोमेट्री वो सब सारा. ओके. ऐसी लिमिटिंग रिएजेंट वो सभी पूछेंगे. ठीक है. हेलो. Yes, sir. यस सर. हाँ, इसका कितना आया था हाइड्रोजन गैस का आंसर? हाइड्रोजन गैस वाले का आंसर क्या आया था? 6th वाला, the 6th वाले का. हाँ हाँ हाँ. Sir, 32.74. यस 32.7. ठीक है. 74. ओके. Yes, sir. और ऊपर वाले का 0.79 वाला? Sir, 13.79. 30.79 approximately 14. Sir, फिर 6th वाले को भी approximately 33 लिख सकते हैं. 32.74 तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, दोनों सही है. आप मतलब आप अपना 30.79 ही आंसर लिखिए. चॉइस जो ऑप्शंस में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर लेंगे. सर इंटीजर टाइप तो option क्वेश्चन फर्स्ट है. फिर ये राउंड ऑफ करेंगे या फिर ऐसे ही लिखेंगे? 6 में इंटीजर टाइप मतलब आई थिंक इंटीजर ही पूछेंगे, वो राउंड ऑफ नहीं पूछेंगे. ओके मतलब राउंड ऑफ ही पूछेंगे. मतलब इंटीजर क्या होता है? होल नंबर वही पूछ. Sir, हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करते समय अगर 1.32 आया तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेंगे ना? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला जब फाइंड करते हैं ना तभी हाँ. 1.32 आया तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 1.3 गलत. देखो फिर से समझ रहे हो. जब हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, E1 E2 E3 मेरे पास अलग अलग एलिमेंट है. परसेंटेज को मैंने डिवाइड किया तो डिवीजन आया. डिवीजन को फिर से हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड किया तो एक नंबर आया. यहाँ तक कोई अप्रोक्सीमेशन अलाउड नहीं है.
हाँ सर, वो पूरा होने के बाद लास्ट स्टेप में 1 उसके और बाद 1.22 है। उसके बाद इंटीरियर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट इंटीरियर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर द परसेंटेज। फर्स्ट क्या है परसेंटेज, देन क्या है डिवीजन, फिर देन क्या है स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट डिवीजन। रेशियो। यस सर। जो नंबर आया उन सब में अगर कोई इंटीरियर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हम स्टेप बाय 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से सभी में कोई भी सभी इंटीरियर नहीं आए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इंटीरियर मल्टीप्लाई नहीं है फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इंटीरियर क्लोजेस्ट आ गया सबका, विल स्टॉप। अप्रोक्सीमेशन अलाउड नहीं है, मतलब 1.99 आ गया, 1.9 आ गया तो देन यू कैन थिंक ओवर इट। इसलिए अगर मैंने आपको समझाया भी था, जैसे मुझे मान लो कि मुझे आ गया 1, 1.3 और 2 आ गया, तो अब इसको 1.3 को 1 नहीं ले लेना है, गलत हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देखेंगे 2.64 आया, 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3.96 आया, 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4.2 और 8 आया। लेकिन 3.9 ज्यादा क्लोजेस्ट है या 4.2 क्लोजेस्ट है? 3.9। 3.9। So then our answer will be this, and 3.9 will be taken as what? 4. समझ गए? यस यस सर। समझा सर। हाँ, तो ऐसे करना है। लास्ट वाला आंसर क्या है, लास्ट वाले का? 33.25। 3.25 चेक कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, डन। बढ़े आगे बेटा, क्लास में, क्लास बढ़ाते हैं। यस सर। So we did till n factor of salts, metals, ions, इन सबके हो गए हमारे। Let's move to n factors for acids and base. Acids for acids and base. एसिड का n फैक्टर देखिए क्या लिखते हैं, साथ में चलिएगा, समझते भी जाइएगा। बेसिसिटी, and what is basicity? Number of H plus displaceable, number of H plus displaceable per molecule. Per molecule is very कीमती word, per molecule of acid, or number of OH minus accepted per molecule of acid. Clear? यस सर। Examples of acid. तो सिंपली इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या हो जाएगी, मोलर मास ऑफ एसिड या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन basicity. Done. Now we'll go through the examples. और एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल्स आपको बाहर हटना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल्स हम एसिड के सिर्फ नाम नहीं बताएंगे आपको, स्ट्रक्चर्स ही बताएंगे और उसके कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर्स भी बताएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स होगा या एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स होगा? दिशा हाँ सर। इंग्लिश में बताओ, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स होगा या एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स होगा? एग्जांपल्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का स्ट्रक्चर, फिर एन फैक्टर,
फिर टाइप ऑफ एसिड और फिर इक्विवेलेंट वेट। तो टाइप ऑफ एसिड डिपेंड करता है कि कितना H प्लस वो डिस्प्लेस कर रहा है। अगर वो 1 H प्लस डिस्प्लेस करेगा तो मोनोबेसिक कहलाएगा। आई विल डिस्कस विद यू, या मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब n फैक्टर क्या होगी 1। डाइबेसिक n factor will be 2, tribasic n factor will be 3, and so on। इन सबको पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। क्या रहने दे, इसको हिलाते हैं। पॉलीबेसिक बोल सकते हैं, पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीप्रोटिक तभी कहेंगे जब वो H प्लस डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल भी दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट, HCl। नाम क्या है इसका, आप नाम भी लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल नाम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, HCl। एक मॉलिक्यूल से कितने निकल सकते हैं, एक ही निकल सकते हैं। मोनोबेसिक। इक्विवेलेंट मास क्या लिखोगे, थर्टी 6.5 अपॉन 6.5। 1। सिंपल, पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, H2SO4। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो H2SO4 से 2 H प्लस निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर, this not mentioned, it can be 1 also depending on reaction, so n factor is not fixed, so if not mentioned it is what, dibasic acid। यस सर। डिपेंडिंग ऑन मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98/2। नाम नाम लिख लीजिएगा। थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड देखिए, H3PO4, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर इसका दिस। कितने H निकल सकते हैं इसमें से, 3 सर। 3 निकल सकते हैं। H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, इसमें से कितना निकल सकते हैं, 3 सर। लॉजिकली इसमें से भी 3 निकल सकते हैं। और अभी आप स्ट्रक्चर से याद रखिए कि जो P से अटैच्ड है वो नहीं निकलेगा, जो O से अटैच है वही निकलेगा। ओके सर। फिर आता है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1।
tribasic acid. If not mentioned, then you have to consider this. What is this? Mono basic acid. यहाँ पे ये लर्निंग है कि जो P से जो डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज नॉट एसिडिक इन नेचर. ठीक है, not acidic in nature. In fact, it is acting as a reducing agent. Due to this hydrogen, which hydrogen? H attached to P, H directly attached to P. Directly attached to P. H3PO2 is reducing agent. Similarly for what? H3PO3. डन सब लोग. अब ये इंफॉर्मेटिव है, इसको कोई समझाएगा तो नहीं, जानना ही पड़ेगा, बिना जाने आप कर नहीं पाएंगे. 6th, H3BO3. अब स्ट्रक्चर देख के आप कंफ्यूज जाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए. क्या आंसर होना चाहिए लॉजिकली? 3 होना चाहिए, पर होता ये भी नहीं है, एक भी नहीं है. इनफैक्ट ये H+ देता ही नहीं है. पर और क्या लिखा था? H+ डिस्प्लेसेबल या गिवन पर मॉलिक्यूल. H+ डिस्प्लेसेबल मतलब क्या हुआ? निकल सकता है. H+ दे सकता है, गिवन बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. तो कोई भी इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है. क्लियर? नॉट अ सिंगल हाइड्रोजन इज व्हाट? एसिडिक इन नेचर. तो ये फिर एसिड कैसे हुआ? इसकी बेसिसिटी क्या 1 कितनी है? तो 1 है. तो जो बेसिसिटी 1 है, इट इज नॉट ड्यू टू डिस्प्लेसेबल H, इट इज ड्यू टू व्हाट? नंबर ऑफ OH माइनस एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड एवरीवन? सर फिर से एक बार समझाएगा. H3BO3 में जो हाइड्रोजन है वो नहीं निकलेगा. H3BO3 में जो हाइड्रोजन है वो एक भी नहीं निकलेगा. वो उसका हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है, वो OH माइनस एक्सेप्ट करता है. अच्छा खुद सोचो ना, HCl क्या देता है बताओ? H+ देता है. हाँ सर. बेस क्या देता है? OH. बोलो. OH माइनस. OH माइनस देता है. तो बेस OH माइनस देता है. OH माइनस किससे कंबाइन करता है? H+ से. यस सर. मतलब OH माइनस किससे कंबाइन करता है? एसिड से. यस सर. वही यहाँ पे कि दिस एसिड इज नॉट गिविंग एनी H+, दिस इज एक्सेप्टिंग OH माइनस. विल टेल यू हाउ. H3BO3 को हम लोग लुईस एसिड कहते हैं. पढ़ेंगे हम लोग. लुईस एसिड कैसा एसिड है? ये मोनोबेसिक एसिड. लुईस एसिड मैं यहीं डिफाइन कर लेता हूँ. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इतने बताऊंगा. रिमेनिंग सभी प्रोटॉन डोनर है. 1 to 5 examples of 1 to 5 are proton donor. देखिएगा वहीं का क्या लिख रहा हूँ. वन टू फाइव
आर प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस डोनर। और ऐसे एसिड को कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये सब नाम जो है डिफाइन बाद में करेंगे, जान सकते हैं। प्रोटॉन डोनर इज व्हाट? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। डन ये सारे एग्जांपल्स। नाउ Yes, sir. H3BO का रिएक्शन देखिए। H3BO को कैसे लिख सकते हैं? BOH थ्राइस। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म BOH4 माइनस। BOH ने बताओ क्या ले लिया H2O से? बोलो। BOH थ्राइस ने क्या एक्सेप्ट कर लिया H2O से? OH. OH नहीं, बोलो। OH minus. OH माइनस एक्सेप्टर। और सॉल्यूशन में जब आप BOH थ्राइस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो BOH4 माइनस बनेगा। सॉल्यूशन में क्या जनरेट होगा? H प्लस। क्लियर? Yes, sir. वही जब आप HCl को डिसॉल्व करते हो वाटर में वो H प्लस प्लस Cl माइनस और देता है। तो दोनों के केस में सॉल्यूशन में क्या मिला? H प्लस मिला, लेकिन HCl का अपना H प्लस था। पर इस केस में H प्लस किसका है? Water. H2. बोलो। वाटर का। तो BOH थ्राइस भी H प्लस देता है पर खुद का H प्लस नहीं देता। वाटर से बोलता निकालो अपना H प्लस। क्लैरिटी है? क्लियर हुआ? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No. HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। अभी बस लास्ट थियरी, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड in water. BOH thrice, it is weak acid in water. पहले ये सारे इंफॉर्मेशन पहले बाय हार्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहले लिख लीजिए अच्छे से सब कुछ। Done, sir. सबको याद हो गया? याद हो जाना चाहिए सब कुछ स्ट्रक्चर के साथ। बाद में ना कहें से मुझे स्ट्रक्चर याद नहीं था, मैं भूल गया सर। डन? Yes, sir. तो H3BO3 कैसा एसिड है? लुइस एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, OH माइनस एक्सेप्टर है, प्रोटॉन डोनर। बोलो। प्रोटॉन का मतलब व्हाट इज एग्जांपल ऑफ प्रोटॉन? बताओ। H प्लस। व्हाट इज प्रेजेंट इन H प्लस? One proton. If you take a neutral atom, what is present in neutral hydrogen atom? One electron, one proton. But if you take H plus, what is present in that? One proton.
बोलो मोटी H प्लस बोलो प्रोटॉन। H प्लस जब बोलते हैं, H प्लस जब हम बोलते हैं तो वो प्रोटॉन ही है और कुछ नहीं है। कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, इसका नाम क्या है पहले? इसका नाम है बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड को भी बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बोरिक एसिड देखा है आपने? हाँ हेलो, सर, वाइट कलर का। कहाँ कहाँ देखे हो? नहीं देखे, हाँ, नहीं देखे। तब देखे हो। कैरम बोर्ड खेले हो? हाँ हाँ सर। सर। यस तो बोरिक पाउडर यूज करते हो? बोरिक पाउडर यूज नहीं करते हो? यस सर करते हैं। वही तो है, ये H3BO3 तो है। सर एसिडिक है। हाँ हाँ, एसिड है वो, वीक एसिड है। उसका एक्वा सॉल्यूशन वीक एसिड है। तो क्या क्या है ये? मोनो बेसिक लुइस एसिड। इट इज नॉट, बोलो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और आर्हेनियस एसिड। तीनों का डेफिनेशन में ये लिख देता हूँ। व्हाट इज लुइस एसिड? बोलो, लिखा है हमने। व्हाट इज लुइस एसिड? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जितना लिखा है उतना दिमाग में सेट, समझने के साथ साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सॉरी। तो लुइस बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर डोनर। बोला। आरएनएस ऐसे होता है H प्लस डोनर। आरएनएस क्या होता है बताओ? H प्लस डोनर। अब बोलोगे कि प्रोटॉन तो सर H प्लस ही होता है, मतलब इन दोनों का एसिड का डेफिनेशन क्या है? सेम। सेम। पर बेस का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है। तो बेस का डेफिनेशन लिखते हैं क्या? डिफरेंट डेफिनेशंस नोट में देखे। लुइस लुइस एसिड या लुइस बेस का डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, सॉरी डोनर। डोनर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस का डेफिनेशन प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज प्रोटॉन? एक्स। व्हाट इज आर्हेनियस बेस? एक्स प्लस एक्सेप्टर। नहीं, OH माइनस डोनर। तो बेस का डेफिनेशन अलग है ना? क्लियर? देखो बता, मार्क भी कर देता हूँ। ये दोनों का डेफिनेशन गिव्स सेम रिजल्ट। इन दोनों का डेफिनेशन गिव्स सेम रिजल्ट। कैसे कभी बताएंगे? दिमाग में इतना सेट करिए अच्छे से लिख के। सबका लिखना भी हो गया क्या? नहीं सर, लिखना नहीं हुआ। लिखिए क्या आपने? सारे हो गया एसिड लिखा? सर। सारे एसिड यस लिख लिए? सर हाँ हाँ सर, हो गया। सब लोग कृतिका, जैन, अभेद्य, आप लोग सब लोग यस सर। लिख लिया? नीचे का पार्ट लिखिए।
एक और बेटा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, भूल जाएंगे तो फिर। बोरिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे आज इस टॉपिक से रिलेटेड, कैन बी इंक्रीज्ड या इंक्रीजेस द प्रेजेंस ऑफ cis diols. डायोल तो पता है, दो अल्कोहल। सिस का मतलब दोनों सेम साइड होना चाहिए। सिस का मतलब क्या है? दोनों सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से लिखिए। डन सर। ठीक है, सब लोग मोल्स का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, बढ़िया है। वीडियो से रिवाइज कर रहे हैं। वीडियोस देखे हैं क्या आप लोग? यस नहीं सर। नहीं सर। देख रहे हो क्या? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन बना रहे हैं हर दिन टारगेट के साथ। डिसिप्लिन रहना है सब। सब लोग बना रहे हैं क्वेश्चन हर दिन। हाँ सर। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर। आज केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन किए सर? सर फिजिक्स का 25 हो गया, मैथ्स का भी हो गया, केमिस्ट्री रात को करते बैठे। हाँ वेरी गुड। टारगेट रखना है, फिक्स करके सोना है। असाइनमेंट खत्म हो जाए तो मांग लेना, परेशान नहीं होना। हाँ सर। बुक्स की कोई लिमिट नहीं है, असाइनमेंट की कोई लिमिट नहीं है अपने पास। एंड डोंट चेक द सॉल्यूशन एवर, जब तक आप थोड़ा उस टॉपिक में स्ट्रांग ना बन जाए। फिर बनाने के बाद आप रेफर करिए, पर स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। तो टाइम दें, 15 मिनट 20 मिनट लगे, क्वेश्चन टफ है तो उसको हैंडल करें, उसकी तकलीफ झेलें, तो वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिमाग में सेट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तुरंत देख लेंगे सॉल्यूशन तो वो याद नहीं रहने वाला, कंफर्म। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन सबको याद हो गए, सभी एसिड के इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया हमने। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर बेस। अब बेस के लिए सिंपल करना क्या है? कुछ अलग तो नहीं करना होगा, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या कमाल का काम होगा, शब्द पूरा कॉपी हो जाएगा। सिर्फ चेंजेस क्या करनी है? बेसिटी ये बताओ क्या आएगा? एसिडिटी। एसिडिटी आ जाएगा। कंप्लीट करिए आप। तो यहाँ पे बेस, n factor of a base is acidity। नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे? पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे? पर मॉलिक्यूल, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत कीमती है, पर वेरी कीमती। मोलर मास ऑफ बेस अपॉन क्या कर ले? एसिडिटी।
क्लियर? एग्जाम्पल, बेस का NaOH, एन फैक्टर क्या होगा वन, टाइप ऑफ बेस क्या होगा बताइए? मोनो, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक कैसे? मोनो एसिडिक ना, हाँ। और मोलर मास 40 होती है, 40/1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। डाई एसिडिक, कि जब मोनो एसिडिक बोल दिया ना, वहीं वहीं पे इन्फेक्टर मिल गया, आगे काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास अपॉन क्या कर ले, 2, जो भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन जो डाई और ट्राई वाले हैं, इनको हम क्या देंगे, क्या कह देंगे, पॉली एसिडिक बेस। डन, लिख ले। क्वेश्चन देखिए, इस पे करवाता हूँ। फाइंड n factor and equivalent mass of H3PO4 in the following reactions. H3PO4 plus NaOH giving NaH2PO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको कि एन को परेशान, एन कितना हेल्पफुल है, और थोड़ा बहुत कभी कभी रिस्की भी हो सकता है सॉल्व करने के टाइम पे इसको यूज करने में। हम लोग, हमें याद रहेगा H3PO4 का 3 है, पर एन फैक्टर दूसरा हो सकता है रिएक्शन के कारण, Na2HPO4 plus 2H2O, और H3PO4 plus 3NaOH giving Na3PO4 plus 3H2O. Find फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा? निकालिए। तो फर्स्ट का NF1 आएगा। फर्स्ट में NF1 आएगा, कैसे पता कि 1 आएगा? सर जो आपको लगता है वही आंसर है। हाँ बोलो बेटा। सर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है इसलिए। एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, बिकॉज H3PO4 से हमने क्या बनाया, NaH2PO4। तो एक H को आपने एक मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर दिया, हाँ या रिप्लेस किया, रिप्लेसेबल लिख सकते हैं, डिस्प्लेसेबल और रिप्लेसेबल, डिस्प्लेसेबल और
डिस्प्लेसेबल और रिप्लेसेबल। ठीक है, डिस्प्लेसेबल और रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल पर मॉलिक्यूल। तो reaction, because n factor depends on what? Reaction. n factor of a compound depends on its what? On the reaction in which it is participating. सबसे पहले आप ये कमेंट करिए सॉल्व करने के पहले, जो सुपर इंपॉर्टेंट है। n फैक्टर, ये तो फंडामेंटली निकाले कैसे वो दिखा दिया, पर क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। n फैक्टर ऑफ अ स्पीशीज डिपेंड्स ऑन reaction in which it is participating। बेसिक फंडामेंटल वे में वो चलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। जैसे अगर हमने ऊपर एन फैक्टर लिखा है CpO4 का 3, मतलब 3 निकाल सकते हैं, पर हमने अगर निकाला ही नहीं, हमने लिमिटेड अमाउंट डाल दिया दूसरे रिएक्टेंट का। बताइए फर्स्ट में क्या एन फैक्टर है? 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में सर 2, तो ये मेंशन कर दें क्या? एन फैक्टर बोलो। 1, 1, 1, सर 2, 2, इसमें 3 सर, सिमिलरली इसमें 1, 1, इसमें 2, because both the OH is replaced by what? Cl। यस सर। लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, find n factor of underlined बताइए।
हो गया आंसर, बोलो। सर H3PO4 पूरे को अंडरलाइन किया है ना, दिस इज PO4 को। नहीं, पीओ पूरा पूरा बेटा, पूरा पूरा एक ही कंपाउंड है ना। हाँ, तो फर्स्ट वाले का 1 है। हाँ, जो आपको लगता है वही आंसर होगा, जान लीजिए। अगर सर आपने वन है में फिर। 1 है। सर वन। तो मेरे इतना बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, बताइए। सर कोई वो PO4 ऐसा लगा आपने PO4 ही अंडरलाइन किया था, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, आप गॉट समझे। गॉट। सर तीनों का 1 है। तीनों का वन है, क्या सर तीनों का वन? तीनों का वन है। अब मुझे सोच के बताना, H3PO4 एसिड है ना, यस। और H3PO4 एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद जो चीजें बनाया, वो फिर से बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये भी एसिड है। यस सर। जो चीजें बनी फिर से, वो अगेन NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये भी एसिड है। यस। हेलो, ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए यहाँ पे पहले एक छोटा सा लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, H3PO4 से रिएक्शन करने के बाद बना है NaH2PO4। उसके बाद क्या बना है? Na2HPO4। अच्छा, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या, बताओ? नो। नो। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में पूछते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ NaH2PO4 एज एन एसिड, तो कितना बोलते हैं, बताइए। हेलो, बोलिए। एब्सोल्यूट फॉर्म में सिर्फ NaH2PO4 दे देते, जैसे सिर्फ H3PO4 दे दिया 2। तो आपने इनफैक्टर क्या बोले, 3। NaH2PO4 दे दिया तो इनफैक्टर क्या बोलते, 2। Na2HPO4 दे दे तो क्या बोलते हैं इनफैक्टर, 1। Na3PO4 बोलते हैं तो हाइड्रोजन नहीं है सर, तो उसकी वो एसिड स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जो चीज समझा रहे हैं फिर से। ठीक है, बन गया बस। समझना क्या लिख रहे हैं। हमने एक कंटेनर के अंदर H3PO4 भी रखा है, NaH2PO4 भी रखा है, और Na2HPO4 भी रखा है। बेस ऐड कर रहे हैं। बेस क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH ऐड कर रहे हैं। NaOH पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? H3PO4। H3PO4 थोड़ा बच जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, या पूरा खत्म होगा तभी दूसरे को टच करेगा, बोलिए। सर बच जाएगा। नहीं, a base will react first completely with strongest acid present in a mixture of acids, and then it will react next bolo it will react with next stronger acid. नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
एंड so on. तो NaH2 को NaOH तक कभी भी तब तक टच नहीं करेगा जब तक वो सारे H3PO4 को खत्म नहीं कर लेता है. वन मोर थिंग, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये सॉल्ट होगा डेफिनेटली, होगा. और ये फिर से किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट. ये भी क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट. सिमिलरली जो हमने ऊपर लिखा था MgOHCl, ये क्या होगा, बेसिक सॉल्ट. क्योंकि अभी किससे रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, उस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है. तो जो सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या बोल देंगे, एसिडिक सॉल्ट. जो एसिड के साथ रिएक्शन करे सॉल्ट, उसको बोल देंगे बेसिक सॉल्ट. डन. नाउ NaH2PO4 को अगर स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा बताओ, Na+ और H2PO4-. तो Na+ का कोई काम नहीं है. Na2HPO4 को स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा बताओ, Na+ और HPO4-. तो Na+ का नो रोल. व्हाट इज Na+? बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन. मेन रोल किसका है, HPO4-, और H2PO4-. स्पेक्टेटर आयन इसको बोलते हैं, और कहते हैं इसको ऑडियंस आयन. ऑडियंस आयन और स्पेक्टेटर आयन. क्लियर है यहाँ तक? तो मेन हाँ सर. ये किसका है, तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को आप ये भी लिख सकते हैं, H3PO4 मोर देन व्हाट, H2PO4- मोर देन व्हाट, HPO4-. और Na+ का कोई काम नहीं है. तो आपको देखो इसी समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज वीकर एसिड. H2PO4- अनायन है, इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट, H+ अपनी तरफ. इसमें बेसिक कैरेक्टर भी आ जाती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की कैरेक्टर आ जाती है, इसलिए वो लेस एसिडिक हो जाता है. डन यहाँ तक? यहाँ तक डन है सब कुछ? यस सर. बोलो. एक और चीज देखो, हमने HCl लिखा और HCl से H+ को निकाल दिया, तो क्या फॉर्म हुआ, Cl-. इसको अगर हमने एसिड कह दिया तो Cl- को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस. वही अगर NH3 कोई बेस है और इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, डिफरेंस ऑफ 1 H+. acid and conjugate base differs by what, acid and its conjugate base differs by 1 H+. Base and its conjugate acid differs by again 1 H+. ज्यादा किसके पास है, एसिड के पास या कॉन्जुगेट बेस के पास, एसिड के पास. ज्यादा किसके पास है, बेस के पास या कॉन्जुगेट एसिड के पास, कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड के पास. प्लीज राइट प्रॉपर्ली. लिखिए.
डन सर। सब लोग डन? अच्छे से लिखिए सब कुछ, जितना आपने लिखा है उतना फिर से स्टार्टिंग से पढ़िए, यस सर। अच्छे से पढ़िए। डन सब लोग? हो गया? यस सर। देखिएगा जो ऊपर रिएक्शन लिखा है मैंने, एडमिट कर रहे हो सुनील? सुनील हाँ सर, अपडेट कर रहा हूँ। सुनील एडमिट कर रहे हो? हाँ बेटा हाँ सर। देखिएगा। हाँ हाँ अच्छा, जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तुम क्या बोलते हो रिएक्शन को? एसिड बेस रिएक्शन करते हैं ना, क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना। न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड प्लस बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। Different stages of neutralization for a polybasic acid or polyprotic acid. Example, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस। जब आप H3PO4 को NaOH के साथ मिक्स करेंगे तो पहले क्या बनेगा? NH2PO4 बनेगा। मान लीजिए, मैंने समझना अच्छे से, मान लीजिए हमने ये 2 मोल्स लिया, समझिएगा 2 मोल्स लिया, तो 2 मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट होकर क्या बनेगा पहले? बोलो। 2 moles of NaH2PO4. 2 मोल्स NH2PO4 बनेगा। अब मान लीजिए हमने 1 मोल NaOH दिया, 1 मोल, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बताइए? 2 मोल NaOH। एनी डाउट? नो सर। उसके अच्छा बताइए, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ H3PO4 लिया, 1 मोल ऑफ NaOH लिया, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? 1 mole of NaH2PO4 सिर्फ वही होगा या कुछ और भी? plus 1 mole of H2O. 1 मोल ऑफ H2O। अरे H2O भूल जाओ, H2O नहीं, H2O तो ठीक है। 1 मोल ऑफ NH2PO4 और what is the final solution containing? If I take 2 moles of H3PO4 and 1 mole of
NaOH plus 1 mole of H3PO4. plus 1 mole of H3PO4. So after reaction with 1 mole of NaOH, what is the mixture containing H3PO4 and NH2PO4? तो I have two acids, दो एसिड है ना हमारे पास. Yes, sir. अब हम बेस ड्रॉप करेंगे उसमें, तो फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा बेस? H3PO4. मतलब जब तक सारा H3PO4 खत्म नहीं हो जाता है तब तक, बोलो, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगा. नहीं होगा. रिएक्शन नहीं होगा. तो फर्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ First stage of neutralization. स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो बेस एक पॉलीप्रोटिक एसिड को पहले न्यूट्रलाइज करेगा और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? NH2PO4 में कन्वर्ट कर दिया. जब तक सारे H3PO4 खत्म नहीं हो जाते NH2PO4 को कुछ नहीं होगा. When all the H3PO4 is over, there is no H3PO4 is remaining. So now a base will touch what? NaH2PO4. NH2PO4. तो NH2PO4 को हम बोल देंगे सेकंड स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. फिर थोड़ा थोड़ा NaH2PO4 खत्म होना स्टार्ट होगा, Na2H2PO4 बनना स्टार्ट होगा, तो मिक्सचर में दोनों हो जाएंगे. फिर भी NaOH किसको टच करेगा? NaH2PO4. NH2PO4 को टच करेगा. तब तक Na2HPO4 को टच नहीं करेगा जब तक NaH2PO4 खत्म नहीं हो जाता. Any doubt in this? नहीं बोलो. सर. No, sir. जब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा रिएक्शन? H3PO4 plus NaOH giving Na3PO4 plus H2. H3PO4 plus 3 NaOH, because ये और ये cancel, ये और ये cancel, and it will give what? Na3PO4 plus 3H2. तो सोच के बताइएगा, मैंने H3PO4 3 मोल्स लिया, ठीक है ना? हाँ सर. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगी? पहले मैं लिख देता हूँ. जब तीनों को ऐड करोगे तो H3PO4 कन्वर्टेड टुवर्ड Na3PO4. अब Na3PO4 में एसिडिक प्रॉपर्टी है क्या? No, sir. नहीं है. बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. सो फाइनली इसको बोलते हैं कंप्लीट, बोलो, Neutralization. Neutralization. So for complete neutralization of H3PO4, which we have taken 3 moles, how many moles of NaOH is required? Don't rush, आराम से बोलिए. Again I'm repeating. For complete neutralization of H3PO4, H3PO4 से Na3PO4 बनना complete neutralization. H3PO4 से NH2PO4 बनना first stage of neutralization. H3PO4 से Na2HPO4 बनना second stage. the neutralization till second stage, है ना? till. So if I need to neutralize, if I want to neutralize the 3 moles of H3PO4 completely, मुझे कितने moles of NaOH minimum चाहिए? Excess डाल देंगे तो हो ही जाएगा. But what is the minimum requirement? Well, गलत. अच्छा, तुम गलत करके सही बोलने की आदत है दिशा? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना समझ में नहीं. दिशा, हाँ बेटा. हाँ sir. अच्छा हाँ, और हाँ भी कह रही है. मैं कह रहा हूँ I have 3 moles of H3PO4. I want to completely neutralize H3PO4 by using 9. Very good. Mole analysis. 3 moles के लिए कितना मोल चाहिए NaOH? 3 मोल चाहिए फॉर्म this. ये भी कितना बनेगा? 3 बनेगा. So 1:1 का रेशियो है. अब ये 3 मोल्स बन गया, इसको न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी. अगेन 3 कितना चाहिए? 3 चाहिए. फिर ये अगेन रिएक्शन करेगा और डायरेक्टली अगर ये 3 मोल्स है 1:3 का रेशियो है, कितना चाहिए? 9. So there are 2 ways. इंडिविजुअली हमने किया, फिर ओवरऑल भी किया.
बात समझ में आई सबको जो हाँ समझाया सर। हमने? हाँ सर। हाँ, if I ask you what is the reaction, overall reaction up to second stage of neutralization, उसके लिए आप किसको ऐड करोगे? What is the overall reaction up to second stage of neutralization? उसके लिए आप किसको ऐड करोगे बोलो? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को। एनी डाउट? No, sir. हाँ सर। क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं। Write the overall reactions up to write the overall reaction between H3PO4 and NaOH for till first stage of neutralization, till second stage of neutralization, until third stage of neutralization. First stage का क्या होगा? First reaction. First First reaction. Second का क्या होगा? H3PO4 plus 2NaOH gives if I मान बेटा ये 1 है, H3PO4 plus 2NaOH plus Na2HPO4 plus 2H2. H3PO4 plus 2NaOH. NaOH gives कुणाल बोल रहे हो? Na2HPO4 plus Na2HPO4 H2O. plus 2H2. क्या लिखो यहाँ पे? Na2HPO4 Na2HPO4 plus 2H2. 2H2. और थर्ड H3PO4 plus 3NaOH gives Na3PO4 plus 3H2. ठीक है, डन। क्वेश्चन हमारा कुछ और था। इसका इन फैक्टर इसमें क्या इन फैक्टर है? 1। इसमें क्या इन फैक्टर है? 2। 1. इसमें इन फैक्टर क्या है? हाँ 1। इसमें इन फैक्टर क्या है? 1। सबको डन यहाँ तक? Yes, sir. फिर से क्वेश्चन। Na2CO3 plus HCl क्या फॉर्म करेगा? NaSCO3 plus NaCl।
NaSCO3 plus HCl will form NaCl plus H2CO3, Na2CO3 plus 2HCl बताइए। सर फर्स्ट का NF1 है। हाँ, क्यों NF1 है, कैसे समझ में आया? वो क्या है? वो Na2CO3 बेस है, एसिड है, क्या है? सर Na2 की जगह NaH आ जाएंगे, इसलिए जो जवाब हाँ है। मतलब Na2CO3 क्या है? बेस है, एसिड है? बेस। कैसे समझ में आया? सर H नहीं वही है समझ, उसमें। क्या बेटा? सर H प्लस आयन नहीं है उसमें। ये क्या मतलब है? ये दिस इज नॉट अ लॉजिक। O2 बेस है, O2 में H नहीं है। बेस के लिए हमने लिखा ना इनफैक्ट का तरीका, Na प्लस क्या था? स्पेक्टेटर है, Na प्लस K Yes. प्लस हम था। तो बेसिकली हुआ क्या रिएक्शन? अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो CO3 2 माइनस प्लस HCl गिविंग व्हाट? Cl K माइनस minus. प्लस SCO3 माइनस। एनी डाउट? No sir. NaSCO3 को भी आप क्या लिख सकते हो? Na प्लस और Na plus. SCO3 HO3 माइनस। minus. SCO3 minus will react with HCl to form Cl minus plus H2CO3. तो what is happening with CO3 to minus? CO3 minus कर क्या रहा है बताइए? Accepting what? H plus. Hydrogen. और जो H plus accept करता है वो क्या होता है? बोलिए। जो H plus accept करता है, बेस का इनफैक्ट क्या बेस। लिखा था हमने? H plus accepted। ये किसने कहा? ये किसका आवाज था? हेलो, हाँ सर। किसकी आवाज थी ये? सर मैं था। मैं कौन? सर कुणाल। कुणाल। हाँ। तो H plus जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। एनी डाउट? No sir. No, sir. तो CO3 2 माइनस भी क्या है फिर? बोलो। सर बेस। बेस। SCO3 माइनस भी क्या है? बेस। बेस। ये क्या हो जाएगा? एसिड। और ये SCO3 माइनस के पास और क्या है? H प्लस भी है। SCO3 के माइनस के पास H प्लस भी है ना? हाँ सर। हाँ, तो NaSCO3 कैसा सॉल्ट हुआ? एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट। सिंस इट कैन गिव H प्लस तो एसिडिक सॉल्ट भी हो गया। एक बहुत और लिखता हूँ। CO3 2 माइनस से जब आपने SCO3 माइनस बनाया, अगर ये बेस है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट। एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। हाँ सर। अगर ये बेस है तो H2CO3 क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड।
उसी तरह इफ यू टेक H2CO3 और आपने H प्लस निकाल दिया, क्या निकाल दिया? H प्लस। ये अगर एसिड है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। इसमें से Yes. आपने H निकाल दिया, तो अगर ये एसिड है, ये क्या है? conjugate base. conjugate base. Conjugate base. Always try to relate this. डन सब लोग? हाँ सर done. बहुत चीजें समझा हमने आज, डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सीखा, समझ में आया। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करो ना, बस एकदम लास्ट का हाँ। देखना बाकी। हाँ हाँ, बड़ा है, आराम से लिखो ना, क्या दिक्कत है, आराम से लिखो। तो कार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो इसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, वो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। डन सर। ठीक। डन। Yeah ठीक। sir done. हाँ, इतनी कंप्लीट करिएगा, अच्छे से ढंग से रिवाइज करिएगा। कहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा किसी स्टेप में, बिकॉज हमने बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया आज हमने, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आज का बता दूं आपको, दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए, नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। एक बेस किसी एसिड को तभी टच करेगा जब उससे स्ट्रॉन्गर एसिड खत्म हो चुका है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? एक एसिड बेस को तभी टच करेगा जब उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पहले खत्म हो रहेगा। हाँ, तो सिमिलरली वाला पार्ट भी आप लिखिएगा, सिमिलरली वाले पार्ट भी आप लिख लीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग टुडे, तो गलतियां ना करें आप इसलिए, क्योंकि हो सकता है एक मिक्सचर ऑफ बेस दे दिया मैंने, HCl ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो स्ट्रॉन्गर एसिड, हाँ एक और लिख देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, वो भी काम आएगा। बेसिक strength order, NaOH is more than Na2CO3 more than NaSO3, ये भी याद रखिए। Okay sir. एक और चीज, H3PO4 NH2PO4 में कर चुका था ऑलरेडी। हेलो, हाँ सर। हाँ सर. एक सुनो, H2CO3, so CO3 2 माइनस, एक मिनट बेटा,
सॉरी एवरीवन, थोड़ा एक अर्जेंट था कॉल। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या, NaOH, Na2CO3, NaSCO3, ठीक है। इसमें आप लर्निंग पहले समझिए। बेस का, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? SCO3 माइनस है, हाँ सर। और वो फिर से बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। समझिए इस बात को। एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड उससे तो कम ही बेसिक होगा। वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। व्हाट इज CO3 माइनस Na2CO3? व्हाट इज SCO3 माइनस हियर? NaHCl। एनी कटायन मैटर, कटायन का कोई मतलब ही नहीं है, आप समझने के लिए। तो किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड उससे कम बेसिक होगा, लिखो। किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? उससे कम कम बेस। बेसिक होगा। सिमिलरली क्या बोलोगे? किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस उससे कम एसिडिक होगा। लिखिए, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। अब रुकिए, यहाँ देखिए, H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2PO4 माइनस। जो उससे कम एसिडिक है, सामने आपके पास है ना? हेलो, क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. H2CO3 एसिडिक है, SCO3 माइनस उसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, फिर से वो एसिड Conjugate बिहेव कर रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज वीकर एसिड देन द एसिड। समझ गए? यस। Conjugate base of an acid is weaker than the acid. Conjugate acid of a base is weaker base than the base. Conjugate acid of a base, देखिए, conjugate acid of a base is weaker than the base। Weaker basic than the base. weaker base than बेस। the base. Similarly, conjugate base, आज बहुत कुछ पढ़ा बेटा, इसे बहुत कॉन्सेप्चुअल 10 बार पढ़िए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। Conjugate base of an acid is weak acid weaker than- acid Weaker acid than the acid. acid. प्लीज 10 बार पढ़िएगा, एक बार में नहीं याद रहेगा। क्लास के पहले तक नोट्स को उल्टाइएगा। ज्यादा कंटेंट पढ़ा नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा, सिर्फ रिएक्शन तो लिखा हुआ है। ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. यस सर। ठीक है। सर आपने जो लास्ट में इक्वेशंस दिए उसमें सेकंड वाले का NF1 आएगा ना? हाँ, सबका 1, इसका 2 आएगा बस। इसका क्या आएगा? 2, क्योंकि 2H+ खींच लिया। इसका NF1, इसका NF1, और इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? अगर ये 1 है, ये 2 है, तो दिस विल बी व्हाट? 1 + 2. ठीक है? हेलो, Yes, sir. तो इतना आप करना रिवाइज अच्छे से। ठीक है? हेलो सब लोग, Yes, sir. ठीक, यस सर। चलिए, ओके बेटा, ओके, थैंक यू, Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. sir. बाय। थैंक यू सर।